Hello engineers, this side Anupama and welcome back to PTS CAD Expert. Hope every one of you are safe and doing well. So in the last video, I discussed about how to place beam, columns, footing and how to do the 3D reinforcement detailing for the same elements. But today in this video, I will discuss about the steel structure. So before moving into the software, I would like to explain an overview of steel structure, its connection and concept, so that it creates a scenario into your mind whenever we practice the same thing in the software. So today we will be focusing completely on the theoretical part, and later we will learn how to get our hand on the most advanced tool available for designing the steel connection. And guys, till now if you have not subscribed the channel, then please like, subscribe and hit the bell icon to get notified for the upcoming videos. And if you will find this video a little informative one, then do share with your fellow engineers. So chalo, let's move into the video. So what are the major types of structures? So every one of you are familiar with that there are three major types of structure, that is the RCC structure, reinforced concrete structure, then steel structure and composite structure with a combination of both the structures. So from this image you can see that almost 7 to 10% of the total pollution in the environment is caused by the cement industry. So due to these, efforts are being made to reduce the amount of cement production globally. So we are looking into the alternatives material. So increasing the awareness of the steel structure is very important. And also the awareness among the Indian construction companies to use the structural steel in various commercial and residential construction activities is on the rise. Because the production method of steel for these structures helps in reducing the greenhouse gas emissions. Moreover, after the demolition of these structures, that is the pre-engineered buildings and components, they are 90% recyclable, do not have a significant impact on the environment as compared to the wastage like asphalt, concrete, bricks and dust. Apart from that, there are many more advantages of steel structure. They are very reliable, they are more elastic in nature and they are more ductile in nature. They take less construction time and it also has high strength per unit weight. So what are the types of steel structure? So there are basically two types of steel structure based on loads. The one is the static structure, in which loading is independent of time, and the other one is the dynamic, in which loading is dependent of time. In static structure, the load is not dependent on time. For example, a building with 2 to 3 floors, that is a G+1, G+2 and 3 building, is an example of static structure. And in which load is dependent on time are called as dynamic structure. For example, the railway bridges. In railway bridges, the load will vary gradually. That is, it will be an uniformly varying load. So the load won't be same everywhere. So railway bridge is a perfect example of dynamic structure. If we talk about any steel frame structure, it has different components to form a complete steel frame. For that, we need to connect all those components through different types of connections. Because in those frame structures, different types of moments, shear force, X, and to resist all those force, we need to provide the connections. Means we have to design those connections. So before designing, we have to know what are the different types of connections and कौन सा connection कहाँ use किया जाता है. And for that, we'll discuss one by one all the connections in the later part. So what is a steel connection? Steel connection is the most important part of the steel construction. Okay, so we usually do steel structure in industrial buildings and many other structures.
The next one is the connection must be stronger and more ductile than member itself. And there are different connection code for different reasons. For example, there is AISC 360 specification for United States. Similarly, India has its own steel design code, and there is an European code as well. So in practice, there is a separate connection designer for a project apart from a structural designer. So what does it mean? It means that when a structural designer is assigned for a steel structure project, he designs the structural members, and then he denotes all the compressive or bending moment and shear force to the diagram. Then he delivers that to the connection designer. So there is a separate connection designer who designs the structural connection of the steel structure. And in most part of the world, these practices follow. Now let's see some of the examples of steel structures. So steel buildings, steel bridges, steel towers are the most common example of the steel structure. So now some common rolled steel sections which have been standardized by BIS are. BIS means Bureau of Indian Standard. So they are the angle section, I section, then channel section or C section, then T section, roll section, roll steel plate, roll steel tubes. So from the image you can see that it is very clear that according to the cross sectional areas of the steel, the names are provided. तो सेक्शन को इनका शेप्स के अकॉर्डिंग नाम दिया. So now talking about the components of a connection. So what are the components? The components are used to form the various connection of the steel members to form a complete steel structure or steel frame. So there are different types of components like bolts. So bolts are used. From this picture you can see that bolts are used to connect the members. The other way is the welding. So weld are used to connect the members. Then connecting plates. From this picture you can see that the plates are being used to connect the members. Then connecting angles. So angles are placed with the help of bolts to form a connections. So these are the different connecting members components which are used to form a steel frames. Now talking about the parts of bolt. So a bolt consists of different parts. They are head, shank, grip length, thread length and nominal length. So from this picture you can see that head is normally the hexagonal in shape and grip length वो length होता है जो प्लेट में डाला जाता है and the length of the grip जो है should be equal to the thickness of the member which are joined together. And thread length वो length होता है जहाँ हम नट को रिसीव करते हैं and दोनों length को मिलाने से that is the thread length and grip length मिलाने से nominal length मिलता है. जो length होता है बोल्ट की वो डिपेंड करता है हमेशा थिकनेस ऑफ द मेंबर जो हमें कनेक्ट करना होता है और आपका बोल्ट का थिक डायमीटर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द लोड कि लोड कितना कैरी कर रहा है एक बोल्ट. What are the different types of bolts? Bolts are of three types. It is unfinished bolt, finished bolt and high strength friction grip bolt. So talking about the unfinished bolt are also known as black bolt and they are also called as ordinary bolt or common bolt. The size available in this bolt are 16 mm, 20 mm, 24 mm, 36 mm and 30 mm, where 16, 20, 24 are the nominal diameter of the bolt. These are the C grade bolt and the grade of the bolt are decided according to the strength of the material. These type of bolts are generally used for general work in steel structures. They are used in light and common structures like purlins, bracing, roof truss, etc. The ultimate stress of this type of bolt are 413 megapascal. And this type of bolts are commonly made up of mild steel. The next is the finished or turned bolt. So they are called as turned bolt
because this type of bolts are obtained by turning the hexagonal shank to circular shape. और हमें इस सेम IS कोड दैट इज IS 3640 यूज करना पड़ता है to know its specifications. The sizes which are generally used in this bolt are 1.5 mm or larger. As compared to unfinished bolt, it has more capacity to resist bearing and shearing. They are expensive bolt because they are normally made up of metals and they are used in special jobs. ऐसे स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं जहाँ हैवी लोड्स आने का चांसेस ज़्यादा होता है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लाइक गर्डर, बीम्स, कॉलम्स, जहाँ शेयर, मोमेंट्स, टेंशन तीनों एक्ट करते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बोल्ट इज द हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, दैट इज द HSFG. To know the specification of this bolt, we have to use IS 4000 1992, and the common size available for this bolt are M16, M20, M24, M30 and M36. So those are the nominal diameters. Normally this type of bolts are used जहाँ पर friction develop होता है, जहाँ पे हम दो स्टील मेंबर और दो स्टील रॉड आपस में जोड़ना चाहते हैं to make a composite section. So obviously वहाँ पर friction develop होता है, and to resist that friction हमें high strength bolt का यूज़ करना पड़ता है, so that इस composite section में का strength में कोई भी effect ना हो. जब हम कोई भी complicated structure बनाते हैं बहुत high strength provide करना पड़ता है, जैसे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हो गया या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन एंड शेयर डेवलप होता है. तो वैसे स्ट्रक्चर में हम हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट यूज़ करते हैं. द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ दिस टाइप ऑफ बोल्ट इज 1033 मेगापास्कल एंड दे आर कॉमनली मेड अप ऑफ मीडियम कार्बन स्टील. और इस बोल्ट का हाई स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमें उसका मीडियम कार्बन स्टील को पर्चिंग या फिर टेम्परिंग प्रोसेस से पास करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. पकड़ लीजिए फ्रॉम 1033 मेगापास्कल से इसका आपका अल्टीमेट स्ट्रेस 1044 या फिर 10668 मेगापास्कल अचीव कर पाता है. There are many different types of whales which are best described by their shapes when shown in the cross section. And among all the whales, the most popular whale is the fillet whale, and it is named after its cross-sectional shapes. And the other types of whales are butt whales, spot or stem whales, plug or slot whales, and edge whales. The fillet whales joins two surfaces at an approximate right angle to each other. And there are several types of fillet as well, like full fillet whale, staggered intermediate full fillet whale, chain fillet whale, and many others. The groove whales or the butt whales are the second most popular type of whales. These groove whales deposited in a groove between two members to be joined. In slot whale, weld is made in an elongated hole in one member of a lap or T-joint, joining that member to the surface of the other member that is exposed through the hole, and this hole may be open at one end and may be partially or completely filled with weld metal. So welding is often done on structures in the position in which they are found, and there are different techniques have been developed to allow welding in any positions. So there are 4 basic welding positions which you can see in this image. So the first one is the flat position. In the flat position, the plates and the axis of weld are done horizontally. And the next one is the horizontal position, in which plates are vertical and the axis of weld are horizontal. And the next one is the vertical position, in which the plates are vertical and the axis of weld are vertical. And the last one is the overhead position, in which the plates and axis of weld are horizontal. Now talking about the different welding joint types. So selecting the most appropriate joint design for a welding job requires a special attention and skill.
So there are 5 basic welding joint types commonly used in the industry according to the AWS, that is American Welding Society. So they are the butt joint, lap joint, T-joint, corner joint and edge joint. In butt joint, the two pieces of metals are placed together in the same plane and the side of the each metal is joined by welding. So the butt weld is the most common type of joint that is used in the fabrication of structure. And talking about the lap joint, they are the modified version of the butt joint and they are formed when two pieces of metal are placed in an overlapping pattern, that is one above the other, and they are most commonly used to join two pieces with different thickness together. And the T-joint is almost similar to that of the fillet weld. That means the welding joints are formed when the two pieces intersect at a 90-degree angle. Therefore, it forms a T shape and in the edges coming together in the center of the plate. Corner joints are similar to that of the T-welding joints. The only difference is about the location. That is, in the T-joint, it is placed in the middle, whereas in the corner joints, it is placed in the corner, forming an L shape. And the last one is the edge joint welding. So as you can see in the image, the metal surface are placed together because so that the edges are even, and one or both plates may be formed by bending them at an angle. The next is the classification of connections. So the different members in the steel structure such as plates, angles, I-beams or channels, so these different components have to be connected properly by means of a fasteners so that they act together as a composite unit. So this connection between the different members to form a steel framework not only facilitate the flow of force and movements from one member to the another, but they also allow the transfer of force up to the foundation level. Okay, so there are different classification of connection. So the first one is on the basis of connecting medium, the second one is according to the type of internal force, the third one is according to the structural elements, and the fourth one is according to the member joining. So इनका भी अलग अलग आपका डिविजन्स है. सो हम लोग एक एक करके हर एक को डिस्कस करेंगे. So types of connection based on the connecting medium. So there are basically 4 types of connection based on connecting medium. They are the riveted connection, bolted connection, welded connection and bolted welded connection. So in most of the place, riveted connection is banned because it creates noise pollution and the labor charges is also high. So riveting is no longer used now. So the most used and trending connection are the bolted and the welded connections. And in the bolted connections, different types of bolts are used, which I have already discussed earlier. In bolted connections are widely used in almost every mechanical and structural system due to its added flexibility. Bolts work in both tension and shear. So in the next part we will discuss how we can place the bolt connection. That is how the connection is done. We'll discuss in the later part. Now talking about the welded connection, the components are joined together primarily by welds according to their particular thickness. The welded connection is almost used in the fabrication of complex structures. That means जहाँ आपका बोल्ट नहीं हो सकता है वही हम लोग का मतलब आपका welded connection यूज़ किया जाता है. But in welded connection there is a greater chance of cracking because there is no provision for expansion or contraction.
And the next is the bolted welded connection. So it's the combination of both bolted and welded connections. So in bolted welded connections, the connections are done shop welded and field bolted type, and it has better strength and has very good ductility, and we can adjust it as we want. अभी हम लोग बात करेंगे द मेथड यूज्ड फॉर रिवेटेड कनेक्शंस. इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्पोजिट सेक्शन बनाने के लिए, दैट मीन्स कोई भी दो मेटल शीट को जोड़ने के लिए हमें किस तरीके से रिवेटेड कनेक्शन करना पड़ता है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगी. तो ध्यान से सुनिएगा. जो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला इमेज है, सो ये एक रैबिट का आपका सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है. सो द अपर पार्ट इज अ सिलिंड्रिकल शेप्ड, वो आपका हेड होता है, ठीक है. एंड द मिडिल पोर्शन इज नोन एज शैंक एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द टेल ऑफ द रैबिट. तो जब हम कोई भी दो मेटल को जोड़ना चाहते हैं टू फॉर्म ए कंपोजिट सेक्शन, सो दोनों कोई भी दो मेटल के बीच में हमें होल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स टू फिट द रैबिट. ओके, सो पकड़ लीजिए कि जो राइट साइड का इमेज है, पकड़ लीजिए दो मेटल, जैसे दो प्लेट को जोड़ने के लिए जो नीचे वाला प्लेट है वो प्लेट ए है और ऊपर वाला प्लेट बी है. तो हमें वो दोनों प्लेट पैरेलली प्लेस करना पड़ता है सो दैट आपका मेटल ए में जो हम लोग होल करेंगे उसका होल और मेटल बी में जो होल करेंगे वो दोनों पैरेलल हो, ठीक है. तो उसके होल के अंदर जब हम लोग रिवेट डालते हैं तो वो शैंक वाला पार्ट आपका फिक्स हो जाता है और जो आपका हेड पार्ट होता है वो ऑलरेडी बना रहता है उसमें, इट इज़ प्रिपेयर्ड वन. सो जो हम लोग होल बनाते हैं आपका रिवेट को डालने के लिए, उसका होल का डायमीटर हमेशा रिवेट से बड़ा होना चाहिए. इट शुड बी लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट. दैट मीन्स इट शुड बी 1.5 mm मोर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है. और जब हम लोग वो रिवेट को डालते हैं, जो उसका टेल वाला पोर्शन होता है उससे हमें हैमर से स्ट्राइक करना पड़ता है टू अचीव अ सिमिलर शेप दैट लाइक ऑफ द हेड. तो जब हम लोग वो हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो उसका ऑपोजिट जहाँ पर टेल होता है उसमें हम लोग को एक सिमिलर टाइप का शेप मिल जाता है, जस्ट लाइक द शेप. तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इमेज से प्रॉपरली क्लियर्ड है. यहाँ से इमेज से आप लोग को समझ में आ रहा है आफ्टर सेटिंग एंड बिफोर सेटिंग. दैट इज जब हम लोग हैमर से उसको स्ट्राइक किया तो हम लोग को सिमिलरली एक सिलिंड्रिकल शेप मिला. सो हम लोग को यहाँ पर दो हेड मिलता है, एक मैन्युफैक्चर्ड हेड जो हम लोग स्ट्राइक करके बनाते हैं और एक ऑलरेडी जो रहता है दैट इज द प्रिपेयर्ड हेड. और जो आपका जो साइजेस अवेलेबल होता है रिवेट का, वो है आपका 28, 30, 32 से लेके 225 mm तक. होप आप लोग को समझ में आया है चीज़. बोल्टेड कनेक्शन जो होता है इसमें बोल्ट यूज़ किया जाता है, और जो बोल्ट होता है एक मेटल पिन होता है. तो आप लोग जो इमेज में देख रहे हो ये बोल्ट का आपका इमेज है. सो बोल्ट का जो अपर पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट, उसको बोल्ट हेड बोला जाता है. एंड द मिडिल पार्ट इज नोन एज द बोल्ट शैंक एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द थ्रेडेड पोर्शन. सो ये थ्रेडेड पोर्शन आपका नट को प्लेस करने के लिए होता है. और ये जो थ्रेडेड पोर्शन है ये अलग अलग ऑर्डर में बनता है क्योंकि इसको जैसे आपको नट को फिट करना होता है वैसे ऑर्डर का ही ये बनता है. तो कोई भी मेटल शीट होता है, पकड़ लीजिए रेक्टेंगुलर शीट हो गया या फिर सिलिंड्रिकल शीट होता है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हमें इस बोल्ट का यूज़ करते हैं हम लोग. और फिर कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग बोल्टेड कनेक्शन, और बोल्टेड कनेक्शन का क्या लिमिटेशंस होता है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है. सो डायनेमिक लोड जहाँ पे आता है वहाँ पे हम नॉर्मली बोल्टेड कनेक्शन यूज़ करते हैं. अगर हम लोग इन प्लेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन रिवेट कनेक्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका वाइब्रेशन और डायनेमिक लोड आता है, देन स्ट्रक्चर फेल होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है. और एक बात ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कौन सा बोल्ट टाइप यूज़ करना है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोल्ट का अलग अलग टाइप्स होता है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं प्रीवियस स्लाइड्स में. जैसे कि आपका
अनफिनिश्ड बोल्ड होता है, फिनिश्ड बोल्ड होता है, फिर HSFG बोल्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को उसका टाइप के अकॉर्डिंग हमें उसको चूज़ करना पड़ता है। और एक प्रॉपर्टी जो हम लोग को ध्यान में रखना है बिफोर चूजिंग द बोल्ड इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोल्ड एज पार एज बेस्ड ऑन ग्रेड। सो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोल्ड होता है वो बेस्ड ऑन ग्रेड आपका डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो जो राइट वाला इमेज है उसमें ग्रेड ऑफ बोल्ड में 4.6, 5.6, 6.5, 6.8 एंड 8.8 अलग अलग ग्रेड का होता है। तो उसका ग्रेड हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एज पर अल्टीमेट स्ट्रेस और रियल स्ट्रेस दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं टू डिसाइड द ग्रेड ऑफ द बोल्ट। सो जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है 4.6 ग्रेड का बोल्ट का, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं कि उसको हम लोग जो कंप्यूट पार्ट होता है जैसे 4 इंटू 100 कर देता है तो उसका आपका हो जाता है 400। तो 400 हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट। और जो आपका यील्ड स्ट्रेस होता है वो आपका जो उसका डेसिमल पार्ट है जैसे कि 0.6 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस से। सो आपका 0.6 इंटू 400 जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस था हम लोग का उससे मल्टीप्लाई करने से हम लोग को यील्ड स्ट्रेस मिल जाता है जो होता है आपका 240। सो वैसे ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग ग्रेड ऑफ बोल्ट के लिए हम लोग अलग अलग से अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका टाइप ऑफ बोल्ट्स और एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोल्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है टू डिसाइड द कि हम लोग कौन सा बोल्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द सर्विसिबिलिटी। Classification of the connection according to the type of internal force. So there are two type of connection according to the internal force. So they are the moment connection and shear connection. So the moment connection is also known as the rigid connection and the shear connection is also known as the flexible connection. So first of all it is very important to understand that what is the difference between the moment connection and the shear connection. क्या आप लोग बता सकते हो इस डायग्राम से कि कौन सा मोमेंट कनेक्शन है और कौन सा शेयर कनेक्शन। और एक बात है कि अगर हम लोग ने एक आई सेक्शन यूज़ किया एज ए बीम, आप लोग को पता ही होगा आई सेक्शन के बारे में। अगर हम लोग ने कोई आई सेक्शन यूज़ किया एज ए बीम, सो उस आई सेक्शन का कौन सा पार्ट आपका बेंडिंग मोमेंट कैरी करता होगा एंड विच पार्ट कैरीज शेयर फोर्स। तो ये दोनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो द फ्लैंज कैरीज द बेंडिंग मोमेंट एंड जो वेव होता है आपका आई सेक्शन का वो कैरी करता है आपका शेयर फोर्स। सो आई सेक्शन का जो मिडिल पार्ट होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो वो आपका शेयर फोर्स कैरी करता है। और जो फ्लैंज होता है, जो अपर फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज होता है कोई भी आई सेक्शन का, वो आपका बेंडिंग मोमेंट कैरी करता है। सो हाउ एंड वाई, सो ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे वो कैरी करता है। सो इसके लिए हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को डिस्कस करना पड़ेगा जो कि आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसका बहुत डीपली हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। सो इन द अपकमिंग वीडियोज़ मैं वो आपके डिस्कस कर लूँगी, बट नॉट नाउ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोमेंट कनेक्शन एंड द शेयर कनेक्शन। सो इन शेयर कनेक्शन में क्या होता है आपका, सो इफ़ यू वांट टू transfer shear force from one beam to the another beam or column, so you have to connect the wave of the I section. So आप लोग देख रहे होंगे इमेज आपका 1 में कि वहाँ पर आपका जो वेव है वो वेव आपका कॉलम का फ्लैंज से कनेक्टेड है थ्रू एंगल। सो जो आपका वेव है वो कनेक्टेड है through an angle to the flange of the column. So you have to connect the wave to the flange of the column on a particular location of the beam, either on the beam or the column. So this type of connection is known as the shear connection because only shear force is transferred through the wave. So based on the connection arrangement, अगर हम लोग कनेक्शन का अरेंजमेंट देखेंगे
तो shear connection can be beam to beam connection और beam to column connection. तो हम लोग मतलब यहाँ पर जो ये डायग्राम है फर्स्ट वाला इमेज, इसमें आपका बीम टू कॉलम कनेक्शन है. तो ऐसे ही हम लोग बीम टू बीम भी कनेक्शन कर सकते हैं या फिर बीम टू कॉलम भी कनेक्शन कर सकते हैं. और शेयर कनेक्शन कैन बी ऑफ प्लेट और एन एंगल. सो यहाँ पर जो आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर बीम और कॉलम आपका एक एंगल से कनेक्टेड है. सो हम लोग इस एंगल के जगह हम लोग आपका प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग ने प्लेट यूज़ किया, देन इफ वी यूज़ प्लेट देन इट इज़ कॉल्ड एज एन शेयर टैप. और जो शेयर टैप होता है उसको हम लोग वेल्ड भी कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको एज ए बोल्टेड भी कर सकते हैं. सो और नेक्स्ट है आपका मूवमेंट कनेक्शन. तो मूवमेंट कनेक्शन में क्या होता है आपका, सो टू ट्रांसफर द मूवमेंट वी हैव टू कनेक्ट द फ्लैंज ऑफ द बीम टू द फ्लैंज ऑफ द कॉलम. सो इस सेकंड डायग्राम से आप लोग को क्लियर हो रहा है कि जो आपका आई सेक्शन का जो फ्लैंज पार्ट है अपर एंड लोअर वाला, वो आपका फ्लैंज ऑफ कॉलम से कनेक्टेड है. और कैसे कनेक्टेड है? थ्रू वेल्डिंग. देखिए ऊपर पार्ट में भी वेल्डिंग किया हुआ है और नीचे का पार्ट में भी वेल्डिंग किया हुआ है. सो ऑन द जो मूवमेंट कनेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, वो 3 टाइप का होता है. सो एक होता है आपका फ्लैंज प्लेट मूवमेंट, दूसरा होता है एंड प्लेट मूवमेंट, एंड द थर्ड वन इज द डायरेक्ट वेल्ड मूवमेंट. सो आपका जो फ्लैंज प्लेट मूवमेंट होता है कनेक्शन, उसमें क्या होता है, जो आपका टेंशन एंड कंप्रेशन लोड होता है फ्रॉम द मूवमेंट इज ट्रांसफर टू द फ्लैंज प्लेट. तो आप लोग देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि जो आपका फ्लैंज है आपका वो मतलब आपका बीम का जो फ्लैंज है वो कनेक्टेड है थ्रू एन फ्लैंज प्लेट, और उस फ्लैंज प्लेट को आपका विद द हेल्प ऑफ बोल्ट कनेक्ट किया है ऊपर नीचे दोनों तरफ. ठीक है. सो वो फ्लैंज जो आपका मूवमेंट जो ट्रांसफ़र होता है वो फ्लैंज प्लेट से आपका टू द बोल्ट होता है, देन टू फ्रॉम द बोल्ट टू द फ्लैंज ऑफ द कॉलम वाया वेल्डिंग. सिमिलरली जो आपका एंड प्लेट होता है, एंड प्लेट मूवमेंट कनेक्शन, और जो नेक्स्ट वाला है एंड प्लेट मूवमेंट कनेक्शन में, उसमें आपका क्या होता है कि जो टेंसाइल फोर्स होता है फ्रॉम द बीम इट इज़ ट्रांसफर टू द प्लेट. तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि वो बीम और कॉलम के बीच में आपका एक प्लेट लगा हुआ है और बोल्टिंग भी किया हुआ है. तो इसका मतलब जो टेंसाइल फोर्स होता है वो आपका फ्रॉम बीम इट इज़ ट्रांसफर टू द प्लेट एंड फ्रॉम प्लेट टू द बोल्ट. ओके. एंड फाइनली टू द फ्रॉम द बोल्ट टू द फ्लैंज ऑफ द कॉलम. और जो नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट वेल्ड मूवमेंट कनेक्शन. So from the name it is very clear that in the direct weld neither flange plate nor the end plate is used. इसमें क्या होता है आपका, ना फ्लैंज प्लेट यूज़ किया जाता है ना एंड प्लेट. इसमें डायरेक्टली द फ्लैंज ऑफ द बीम इज कनेक्टेड टू द फ्लैंज ऑफ द कॉलम थ्रू वेल्डिंग, और आपका यहाँ पर बोल्टिंग भी किया जाता है. So now with the help of this graph, so we can know the movement, rotation, behavior of the connections. So जो आपका x एक्सिस में है वो है रोटेशन, और यहाँ पर आपका थीटा इज मतलब उसको रोटेशन को यहाँ पर नोटिफाई किया है, और आपका y एक्सिस में है आपका मूवमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर का बना हुआ है वो है स्टिफ कनेक्शन. स्टिफ कनेक्शन मतलब आपका है हो गया रिजिड कनेक्शन. ठीक है. सो रिजिड कनेक्शन का मतलब हो गया मूवमेंट कनेक्शन. सो रिजिड कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज द मूवमेंट कनेक्शन एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट मूवमेंट ओनली. और कुछ हद तक रोटेशन को भी रेजिस्ट कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट. तो आप लोग को इस ग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि कुछ एक्सटेंट तक वो मूवमेंट को भी आपका रेजिस्ट कर सकता है. एंड द ग्रीन कलर वाला जो आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, दैट मीन्स द शेयर कनेक्शन, these are expected to resist and transfer and rotation only.
एंड इट परमिट्स द फ्री रोटेशन ऑफ द बीम। और जो बीच में आपका रेड कलर का बना हुआ है वो है आपका इंटरमीडिएट स्टिफनेस, दैट मीन्स इट इज़ अ सेमी रिजिड कनेक्शन। सो नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये कनेक्शन कुछ हद तक मोमेंट को भी रेजिस्ट कर सकता है और कुछ हद तक रोटेशन को भी। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द अनदर टाइप, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेंबर जॉइनिंग। सो अकॉर्डिंग टू मेंबर जॉइनिंग there are 4 types of connection. The first one is beam to beam connection, the second one is beam to column connection, and third one is column to column connection, and the fourth one is column to base plate. So beam to beam connection is further divided as wave cleat angle connection and wave and seat angle connection. So wave cleat angle connection is a framed connection, is also known as frame connection, and wave and seat angle connection is also known as seated connection. And beam to column connection is further divided as framed connection and seated connection. And seated connection is again divided as unstiffened connection and stiffened connection. Okay, so we are going to discuss one by one in detail. So here, whether it's beam to beam connection or beam to column connection, whether it's a column to column connection or column to base plate connection, in this connection the fasteners and welds are used for the connection. So fastener means whether it's a rivet or a bolt is used. तो बीम टू बीम कनेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बीम टू बीम कनेक्शन में क्या होता है कि मेन बीम को सेकेंडरी बीम से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्रू आइदर फ्रेम कनेक्शन हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो विथ सीटेड कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम कनेक्शन। फ्रेम कनेक्शन में क्या होता है, तो आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ग्रीन वाला आई सेक्शन है वो आपका है मेन बीम, और जो पर्पल कलर का आप लोग को दिख रहा है वो है सेकेंडरी बीम, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी बीम आपका मेन बीम से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए वेव क्लीट एंगल। जो आप लोग रेड कलर का देख रहे हो वो है आपका वेव क्लीट एंगल। इसका मतलब आपका जो सेकेंडरी बीम है उसका वेव आपका मेन बीम का वेव से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए वेव क्लीट एंगल। और जो आपका वेव क्लीट एंगल है वो आपका दोनों तरफ सेकेंडरी बीम का कनेक्ट किया जाता है। अभी जो हम लोग कनेक्शन डिस्कस कर रहे हैं फ्रेम कनेक्शन का, उसमें क्या होता है वो आपका सेकेंडरी बीम का फ्लैंज का और मेन बीम का फ्लैंज के बीच एक थोड़ा सा वर्टिकल डिस्टेंस होता है, दे आर नॉट इक्वल इन डिस्टेंस। बट और एक भी कनेक्शन होता है आपका फ्रेम कनेक्शन में, जहाँ आपका फ्लैंज ऑफ द सेकेंडरी बीम एंड द फ्लैंज ऑफ द मेन बीम कॉन्साइड विद ईच अदर। इसका जो टॉप लेवल है वो सिमिलर होता है, दोनों का कॉन्साइड करते हैं दोनों। सो बट अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका इसमें दोनों के बीच में एक वर्टिकल डिस्टेंस है। सो आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो है वेव एंड सीट एंगल सीटेड। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सीटेड कनेक्शन क्या होता है। तो जब आप एक एंगल यूज करते हैं जो कि सीट की तरह या फिर चेयर की तरह एक्ट करता है, उसे हम सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर जो डायग्राम पे देख रहे हो आप, जो ग्रीन कलर का बीम है उसे हम मेन बीम बोलते हैं या फिर सपोर्टिंग बीम। एक बात याद रखिएगा कि मेन बीम को हम लोग सपोर्टिंग बीम भी बोल सकते हैं, और जो आपका पर्पल कलर का बीम है वो है आपका सेकेंडरी बीम, और इसे हम सपोर्टेड बीम भी बोल सकते हैं। सो यहाँ आपका क्या हुआ है कि जो सपोर्टेड बीम और सेकेंडरी बीम है, सपोर्टेड और सेकेंडरी बीम का जो लोअर फ्लैंज है उसको मेन बीम और द सपोर्टिंग बीम से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए सीट एंगल। तो आप देख रहे होंगे जो आपका सेकेंडरी बीम का लोअर फ्लैंज है उसको आपका मेन बीम का जो वेव है उससे कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए सीट एंगल नीचे में, जो तो इट एक्ट एज एन जस्ट लाइक इन चेयर, ठीक है। सो लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द सीट एंगल टू द मेन बीम। जो आपका लोड ट्रांसफर होता है तो वो आपका सेकेंडरी बीम से सीट एंगल देन टू द मेन बीम, ओके। और ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं एक अपर फ्लैंज में
सेकेंडरी बीम का एक रेड कलर का और एक एंगल लगा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं टॉप क्लीट एंगल। तो टॉप क्लीट एंगल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इट इज अटैच टू द टॉप फ्लैंज ऑफ द सेकेंडरी बीम। जो सेकेंडरी बीम उसके ऊपर लगाया गया है आपका, टू कीप इट इन पोजिशन सो दैट कोई भी लेटरल मूवमेंट ना हो एंड कोई भी डायरेक्शन में लेटरल मूवमेंट ना हो, एंड टू प्रिवेंट दैट वी हैव टू यूज दैट टॉप क्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? बीम टू कॉलम कनेक्शन, एंड दिस इज द फ्रेम्ड कनेक्शन। हम लोग अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको बीम टू कॉलम कनेक्शन का फ्रेम कनेक्शन है। सो बीम टू कॉलम कनेक्शन हम लोग बीम को कॉलम का फ्लेंज में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम का वेव में भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग वैसे कनेक्ट करना है। बट इस डायग्राम में आपका बीम का वेव आपका कनेक्टेड है टू द कॉलम फ्लेंज, ठीक है। तो फ्रेम कनेक्शन में क्या होता है? यहाँ पर जो बीम है, बीम इज कनेक्टेड टू द कॉलम फ्लेंज बाय प्लेसिंग टू एंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द वेव ऑफ द बीम। तो दोनों तरफ आपका दोनों क्लीट एंगल है, ठीक है। सो मैंने पहले बोला है कि बीम टू कॉलम कनेक्शन में दो टाइप का होता है, एक फ्रेम कनेक्शन और एक सीटेड कनेक्शन, ठीक है। सो फ्रेम कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है हम लोग कब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम कनेक्शन इज नॉट यूज्ड इन कॉलम इफ कॉलम शैलो वेव डेप्थ कम हो, ठीक है। मतलब आपका जो कॉलम का डेप्थ है, मतलब जो ओवरऑल डेप्थ है, मतलब वेव प्लस दोनों फ्लैंज को, अपर फ्लैंज एंड लोअर फ्लैंज को ऐड करके जो डेप्थ मिलता है हम लोग का टोटल, अगर वो शैलो हो मीन्स कम हो, तब हम लोग फ्रेम कनेक्शन यूज नहीं करते, ठीक है। और अगर और एक भी कंडीशन है, और अगर इस कॉलम का जो फ्लैंज है आपका वो मतलब लोअर फ्लैंज एंड अपर फ्लैंज, अगर उसका विड्थ भी नैरो हो, मतलब कम हो, तब भी हम लोग फ्रेम कनेक्शन यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है आपका प्रॉपर्ली लोड ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों कंडीशन होने से हम लोग फ्रेम कनेक्शन को अवॉइड करते हैं। सो जो नेक्स्ट आपका बीम टू कॉलम कनेक्शन का सीटेड कनेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सीटेड कनेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड एज अनस्टीफेंड और स्टीफेंड। सो ठीक है, तो पहले हम लोग अनस्टीफेंड के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका। तो अनस्टीफेंड मतलब अनस्टीफेंड कनेक्शन आर सुइटेबल कब होता है? व्हेन फॉर रिएक्शन लेस देन 150 किलो न्यूटन। सो आपका अनस्टीफन कनेक्शन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सीट एंगल विच इज सपोर्टेड टू द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। टू द एंड ऑफ द बीम आपका सीटेड एंगल होता है, एंड अनदर एंगल कॉल्ड द टॉप क्लीट एंगल इज प्रोवाइडेड टू कीप द टॉप फ्लैंज ऑफ द बीम इन पोजिशन। तो ऊपर भी एक टॉप क्लीट एंगल लगाया जाता है टू कीप द टॉप फ्लैंज ऑफ द बीम इन पोजिशन। और हम लोग कब यूज करते हैं अनस्टीफन? जब उसका रिएक्शन लेस देन 150 किलो न्यूटन होता है। और आपका जो स्टीफेंड कनेक्शन है उसमें क्या होता है? वी प्रोवाइड स्टीफनर्स, ये अलग से स्टीफनर प्रोवाइड किया जाता है अलोंग विद द सीट एंगल। आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम पे, पर लिखा हुआ है कि पैकिंग स्टीफनर। और जो सीट एंगल है कनेक्शन आपका सेम ही होगा, बस ये फर्क है कि हम लोग स्टीफन कनेक्शन में एक स्टीफनर हम लोग यूज करते हैं अलोंग विद द सीट एंगल। सो वो क्यों यूज करते हैं हम लोग? सो आपका दो कंडीशन है जब हम लोग आपका स्टीफन कनेक्शन यूज करते हैं। एक तो वो कंडीशन है कि अगर रिएक्शन आपका ग्रेटर देन 150 किलो न्यूटन होगा तो हम लोग स्टीफन कनेक्शन यूज करते हैं। सो डिफरेंस ये है अनस्टीफन और स्टीफन के बीच में कि अनस्टीफन में हम लोग तब यूज करते हैं जब रिएक्शन लेस देन 150 किलो न्यूटन होता है, और स्टीफन हम लोग तभी यूज करते हैं जब उसका रिएक्शन 150 किलो न्यूटन से आपका ज़्यादा होता है। और एक कंडीशन है जब हम लोग स्टीफन कनेक्शन यूज करते हैं कि अगर कैलकुलेटेड नंबर्स ऑफ द बोल्ट टू कनेक्ट द सीट एंगल विद द कॉलम इंक्रीजेस, ठीक है। अगर अब हम लोग का नंबर ऑफ बोल्ट्स इंक्रीज हो जाता है टू कनेक्ट द सीट एंगल टू द कॉलम, तब हम लोग आपका स्टीफनर यूज करते हैं। हम लोग नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकालते हैं आप लोग को पता ही होगा कि फैक्टर लोड बाय वोल्ट वैल्यू। तो सपोज अगर नंबर ऑफ वोल्ट्स हम लोग का 10 वोल्ट निकला, तो 10 वोल्ट को प्रोवाइड करना एक सिंपल सा एंगल में
जो नीचे लगा हुआ है वो आपका इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग तब प्रॉपर एज डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ बोल्ट इंक्रीज हो जाएगा तब हम लोग स्टीफन कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा स्टीफन एंड अनस्टीफन का डिफरेंस क्या होता है। सो द नेक्स्ट वन इज द टाइप इज द कॉलम टू कॉलम कनेक्शन। तो कॉलम टू कॉलम कनेक्शन आपका थ्रू कॉलम स्प्लाइसिंग होता है। तो व्हाट इज, तो आप लोग ने सुना होगा कि कॉलम स्प्लाइसिंग के बारे में। तो क्या होता क्या है एग्जैक्टली कॉलम स्प्लाइसिंग? तो अगर हम लोग कोई भी स्टील मेंबर का बात करते हैं तो उसका हर एक स्टील मेंबर का आपका एक स्टैंडर्ड हाइट होता है ना। सो वो स्टैंडर्ड हाइट आपका कोई भी स्टोरी हाइट या फिर बिल्डिंग हाइट से मैच हो भी सकता है या फिर मैच नहीं भी हो सकता है। तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मेंबर को जोड़ना पड़ता है। अगर हम कॉलम का बात करते हैं देन हमें कॉलम को वर्टिकली ज्वाइन करना पड़ता है। सो दिस वर्टिकल कनेक्शन को हम लोग इसे कॉलम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। आपका कॉलम टू कॉलम कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं इमेज में कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम के ऊपर प्लेस कर दिया गया है। सो जो नीचे वाला कॉलम है ब्लू वन वो आपका लोअर कॉलम है एंड जो अपर कॉलम है जो ग्रीन कलर में वो है आपका अपर कॉलम। और दोनों कॉलम का फ्लैंजेस को इक्वली प्लेस कर दिया गया एक के ऊपर एक। और दोनों फ्लैंजेस को जोड़ने के लिए वहाँ पर आपका एक कवर प्लेट लगाया दिया गया है। जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है वो कवर प्लेट है। और कवर प्लेट दोनों तरफ आपका कनेक्ट कर दिया है फ्लैंजेस का, ठीक है। सो दैट द अपर कॉलम से जो लोड आता है वो आपका प्लेट पे जाए एंड देन फ्रॉम प्लेट टू द लोअर कॉलम। और जो आपका ये कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट आपका थ्रू बोल्ट कनेक्ट कर दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं इमेज में ये बोल्ट यूज किया गया है टू कनेक्ट द कवर प्लेट टू द फ्लैंजेस। और इसमें भी आपका दो केसेस होता है। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ केस वन है, जहाँ आपका जो ओवरऑल डेप्थ है आपका दोनों कॉलम का फ्लैंजेस का इक्वल होता है और विड्थ ऑफ द फ्लैंजेस भी आपका यहाँ पर इक्वल होता है। ओवरऑल डेप्थ मतलब आपका अपर फ्लैंज टू द लोअर फ्लैंज तक जितना डिस्टेंस होता है दैट इज द ओवरऑल डेप्थ। तो दोनों का ओवरऑल डेप्थ इक्वल होता है। और दूसरा एक केस होता है जहाँ पर आपका फ्लैंजेस का विड्थ तो इक्वल होता है बट जो डेप्थ होता है ओवरऑल डेप्थ वो इक्वल नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इस केस में दो केस होता है इस कॉलम टू कॉलम कनेक्शन में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉलम टू बेस प्लेट कनेक्शन। तो कॉलम टू बेस प्लेट कनेक्शन आपका दो टाइप का कनेक्शन होता है। एक आपका होता है थ्रू स्लैब बेस और एक होता है थ्रू गसेटेड बेस। सो आप लोग को यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। और पहले हम लोग जानते हैं कि बेस प्लेट होता क्या है और हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं बेस प्लेट, ठीक है। सो जब कोई भी कॉलम आपका कंक्रीट फुटिंग के ऊपर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, आपका लोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि आपका जो कंक्रीट होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस कम होता है इन कंपेरिजन टू द स्टील फुटिंग, ठीक है। तो जो भी एक्शियल लोड आपका कॉलम से आता है वो आपका प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है कॉलम का फुटिंग में, ठीक है। और सॉरी फुटिंग में आपका कंक्रीट का फुटिंग में, क्योंकि उन दोनों के बीच आपका कंटेक्ट एरिया बहुत ही कम रहता है, ठीक है। इसलिए आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लोड को हम कॉलम उसके नीचे एक स्टील प्लेट का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो प्लेट हम फुटिंग से फिर जोड़ देते हैं। देन लोड आपका कॉलम से प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड देन फ्रॉम प्लेट आपका फुटिंग पे। सो हम जो ये कॉलम टू फुटिंग जो हम लोग कनेक्शन करते हैं उसके लिए हम लोग जो बेस प्लेट कनेक्ट करते हैं उस बेस प्लेट को हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसका हम लोग को उसका डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, थिकनेस हम लोग को निकालना पड़ता है। सो वो अलग अलग होता है एज पर लोड हम लोग वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो द जो मेन फंक्शन क्या होता है आपका बेस प्लेट का कि वो इट इज़ टू स्प्रेड द कॉलम लोड ओवर ए सफिशिएंटली वाइडर एरिया, ठीक है। तो वाइडर एरिया पे आपका लोड ट्रांसफ़र हो जाता है जब हम लोग बेस प्लेट यूज़ करते हैं एंड कीप द फुटिंग फ्रॉम बीइंग ओवर स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लैब बेस और गसेटेड बेस का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो पहले कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इमेज में कि स्लैब बेस में आपका
जो कॉलम है उसको एक प्लेट से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर थिकनेस, और वो दोनों कनेक्शन थ्रू क्लीट एंगल किया जाता है। तो एक एंगल के हेल्प से हम लोग दोनों कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपका बोल्टिंग किया है, देखिए एंगल में हम लोग ने बोल्टिंग किया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर वेल्ड भी कर सकते हैं, तो हम लोग ये वाला इमेज देखिए, इसमें दिख रहा है कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर स्प्लिट एंगल का ज़रूरत नहीं है। तो इस इमेज से हम लोग को दिख रहा है कि जब हम लोग वेल्डिंग किया है यहाँ पर, तो हम लोग ने यहाँ पर क्लीट एंगल प्रोवाइड नहीं किया है, बट हम लोग जब बोल्ट करेंगे तो हम लोग को क्लीट एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका गसेटेड बेस है उसमें क्या होता है, द कॉलम इज कनेक्टेड टू द बेस प्लेट थ्रू गसेट। तो गसेट प्लेट के हेल्प से आपका कनेक्ट किया जाता है, और वो गसेट प्लेट को आपका कनेक्ट किया गया है गसेट एंगल से, ठीक है, आप लोग को इमेज से दिख रहा है थ्रू बोल्ट। तो आपका जो यहाँ पर एंगल्स प्रोवाइड किया है, दोनों में एंगल प्रोवाइड किया है, बट डिफरेंस ये है कि आपका जो स्लैब बेस है उसका एंगल का विड्थ जो होता है वो आपका कॉलम का फ्लैंज का इक्वल होता है इन स्लैब बेस। और आपका जो गसेट बेस होता है उसमें आपका विड्थ ऑफ जो एंगल होता है वो इक्वल टू द विड्थ ऑफ द प्लेट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपका जो गसेट प्लेट यूज़ करते हैं हम लोग गसेट बेस में, उसका भी आपका जो विड्थ है वो आपका जो हम लोग प्लेट यूज़ करते हैं बेस प्लेट उसका इक्वल होता है। और जो आपका स्लैब बेस होता है उसमें आपका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ आपका कॉलम बहुत स्मॉल लोड, बहुत कम लोड आपका कैरी करता है, वहाँ पर आपका स्लैब बेस यूज़ किया जाता है। और जो लोड जो आपका ट्रांसफ़र होता है टू द बेस प्लेट थ्रू बियरिंग होता है, मतलब आपका कॉलम से आपका प्लेट तक जाएगा आपका लोड, देन फ्रॉम प्लेट टू द फुटिंग। और जो गसेटेड प्लेट है वहाँ पर जब हम गसेटेड प्लेट तभी यूज़ करते हैं जब कॉलम आपका हैवी लोड आपका कैरी करता है। दैट मीन्स व्हेन कॉलम कैरी हैवी लोड गसेटेड प्लेट बेसिस आर यूज्ड। बट गसेटेड प्लेट में क्या होता है, आपका द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बेस partially थ्रू बियरिंग एंड partially थ्रू गसेट, ठीक है। तो गसेट प्लेट में क्या होता है, जो लोड ट्रांसफ़र होता है आपका partially थ्रू बियरिंग होता है एंड partially थ्रू गसेट होता है। तो अगर पकड़ लीजिए, अगर आपका लोड P है तो आपका P/2 आपका थ्रू बियरिंग ट्रांसफ़र होगा और रिमेनिंग P/2 आपका थ्रू गसेट होगा लोड ट्रांसफ़र। और एक डिफरेंस ये है कि आपका स्लैब बेस वही यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपका कंसेंट्रिक लोडिंग होता है, और आपका गसेट प्लेट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपका इसेंट्रिक लोडिंग होता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट whatever we have discussed today in the software. And student, please go through IS 800 2007 once to get better understanding about the steel structure and its connection. So till then, take care everyone. Goodbye. See you in the next video.